ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਫੇਜ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਰੋਟੇਟ ਇਨ ਦ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਸਿੰਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਈਨੋਸਾइडल ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਫਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾइन ਐਂਡ ਸਾइन ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੋ ਇਹ m ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੋ ਮੈਕਸਿਮਮ EMF ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। So peak value होगी omega is the angular frequency and phi is the phase difference, ठीक है जी। तो सर रिपीट करूंगे एक मिनट। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨੋਸਾइडल ਮੋਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਾਈਨ ਲਾਈਕ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ -1, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ a ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨੋਸਾइडल ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਕਟੋਰੀਅਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਫॉर एग्जांपल ਆ ਹੋ ਗਿਆ 1 तो ये ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ तो ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। तो जिन्नी ਇਹਦੀ ਐਰੋ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ 5 ਐਂਪੀਅਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਐਰੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10 ਐਂਪੀਅਰ ਨੂੰ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸੇ 12 ਨੂੰ ਐਂਪੀਅਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हैं, ठीक है। और आ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ ਐਂਗਲ ओमेगा t plus phi आ ओमेगा t plus phi, ठीक है। तो जिन्ना भी एंगल आ 30 आ 45 आ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ठीक है जी। So note कर लिया जी। So phasor is nothing but a vector which rotates around its origin at a constant speed. Omega angular velocity होगी and it is in the anti-clockwise direction, ठीक है जी। So note कर लिया जी। ठीक है। सो इनू जस्ट अपने कोले की इनू नोट नहीं करना। ओमेगा टी हो गया 30 60 90 सो ऑन जेड़ा ओदा एंगल्स जेड़े आ वो आप रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट जेड़े ए वाले हैगे आ अपने कोल ना 6 डेरिवेशंस आ जड़ियां ए वालियां हैगियां और इन्हां दे विच डेफिनेटली तुहानू फाइनल दे विच एक डेरिवेशन जेड़ी आ वो आनी ही है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ। सो ਜਿਹੜਾ फर्स्ट है वो की है AC सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। तो आ आपा रेजिस्टेंस जेड़ी आ ओ हो गई। तो आपा सो फार इस रेजिस्टिव सर्किट दा बिहेवियर जेड़ा आ ओ स्टडी कीता आ डायरैक्ट करंट दे नाल। हुण आपा की करना आ अल्टरनेटिंग करंट दे नाल जेड़ा आ इहदा बिहेवियर जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। So R लिखे consider an ideal resistor connected across the alternating source of EMF कर लियो वोल्टेज की बजाय, वैसे कोई टेक्निकली थोड़ा जिहा हुंदा अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। EMF let E naught is the peak value of alternating EMF, then
instantaneous EMF is given as तो इंस्टेंटेनियस EMF के इक्वल हो जाएगा E is equal to E naught sin omega t। रेजिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ V is equal to IR IR। ठीक है, ओम्स ला I is equal to E over R। तो E ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ E naught sin omega t और E naught over R एक ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ I naught ਤੇ। हाँ जी, ग्राफ ना बनाइयो, नोट कर लिया सारा? हाँ जी सर। अगर असी E ते T च ग्राफ प्लॉट करना हो तो आपां जिहड़ी ग्राफ है वो वाइट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, वाइट कर्व रिप्रेजेंट करेगी कि ब्लैक? वाइट। ठीक है, क्योंकि एक ही है साइन, साइन जीरो कितना हुंदा? जीरो। तो आ इत्थे टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया T, तो आ अपने कोल टाइम कितना हो गया T/2। ठीक है, तो साइन 190 कितना हुंदा? 0। साइन 90 1 साइन 270 -1 साइन 180 0। जो हुण करंट है, करंट ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆ ਬਲੈਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆ ਯੈਲੋ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਯੈਲੋ ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ रेड लाइन का रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी किहदे नाल आपां रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेड, वाइट, ब्लैक के येलो? किहड़ी कर्व? सर येलो तो अलावा तीनों ही सही है। तो येलो तो अलावा तीनों ही सही है, तो येलो नहीं है, ठीक है, क्योंकि येलो कॉज ना रिप्रेजेंट कर दिया। तो रेड, वाइट के ब्लैक कितने ठीक है? सर तीनों ही ठीक है। तो ये क्योंकि करंट भी साइन आ, तो ये भी अपने को साइन जीरो ही होगा। तो ये जो सही रिप्रेजेंट करेगी करंट नू, वो केड़ी लाइन रिप्रेजेंट करेगी, कर्व केड़ी रिप्रेजेंट करेगी? ब्लैक। वैसे तीनों ठीक है क्योंकि साइन है, पर करंट दा एम्पलीट्यूड जिहड़ा आ वो वोल्टेज तो E नॉट तो जिहड़ा I नॉट है वो E नॉट तो घट होगा कि ज्यादा होगा, कि डिपेंड करेगा? फिर घट होगा। घट होगा, ठीक है, क्योंकि I नॉट कितना बनिया? R नाल डिवाइड करके, R तो पॉजिटिव टर्म है ना, इसलिए I नॉट जिहड़ा आ वो हमेशा ही इहदे तो घट होगा। समझ गए जी? ठीक है, तो ये अपने कोल जिहड़ी आ लाइन है ये अपने कोल की हो गई E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, तो एक करंट EMF नु रिप्रेजेंट करती है।
ठीक है। तो दोनों दे विच फेज डिफरेंस कितना है, 0 के 90? दो ही कर्व्स, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम आ कि डिफरेंट आ? सेम सर। सेम आ। सेम। इसलिए इहदा जिहड़ा फेज डिफरेंस है वो कितना हो गया, 0। तो एंगल दोनों का ही सेम आ ना, तो वो भी साइन ओमेगा टी है, ये भी जिहड़ा हैगा आ ये भी साइन ओमेगा टी ही है। इसलिए इन्हां दे विच जो फेज डिफरेंस हो गया करंट ते ईएमएफ दे विच ये कितना हो गया, 0। ठीक है जी। सो आ ग्राफ बनाइयो ते आ लिख लियो where I naught is equal to E naught over R, ठीक है। Therefore current is in phase with EMF for a resistive circuit, आ नोट करिए सर। समझ लग गया है, सारा सिंपल है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। तो ग्राफ जिहड़ा ना डायग्राम बनाई है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट आ, इनू किसी भी हालत च इग्नोर नहीं करना कि आपां चलो थोड़ी गलत बना लीए या कुछ आ, इहदे ही नंबर मिलने तुहानू, ठीक है। आ नोट कर लो। जो डिनोमिनेटर है वो 6 ज्यादा है यार न्यूमरेटर तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना होगा जी, न्यूमरेटर 16 है। न्यूमरेटर तो 16 टाइम्स ज्यादा है, फिर मोर देन 60 है। इसी के लिखा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 greater than its numerator if the sum of the denominator and the numerator is just find the fraction. ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। न्यूमरेटर पता है कितना है, 16। डिनोमिनेटर पता है x हो गया, हाँ जी। ये तो कितना ज्यादा है, 6। ठीक है। तो ये x आ, ये तो 6 प्लस कर दिए तो 16 बन गया, x कितना हो गया, सर ग्रेटर देन या इसका जे लेस देन हुंदा फिर ਆਪਾਂ माइनस कर देना, जे टाइम्स हुंदा फिर इनटू कर देना। हाँ जी नोट कर लिया जी, हाँ जी ठीक है। तो लिखियो जी अगे, द फेजर डायग्राम for resistive circuit is as shown. सर रिपीट करियो। The phasor diagram, PHASOR, phasor diagram for resistive circuit is as shown, ठीक है। तो इन्हां पेपर दे विच तुहानू क्वेश्चन ये आना है कि ड्रा द फेजर डायग्राम, ठीक है जी। तो अगर तुसी पूरी डेरिवेशन करती आ वाली फेजर डायग्राम ना बनाई तो तुहानू नंबर कोई नहीं मिलना, तरस खा के शायद अद्धा नंबर कोई दे दे, ठीक है जी। सो फेजर्स की हैगे आ एरोस, तो अपने कोल इत्थे जिहड़ा हैगा आ वोल्टेज आ हो गया, ठीक है। एंगल कितना है इत्थे, एंगल कितना, 45 डिग्री। ओमेगा टी फेजर मतलब आ हुंदा ना आर्गूमेंट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो भी इत्थे आ गया तो इत्थे की ओमेगा टी हो गया, ठीक है। तो ये आपां की रिप्रेजेंट करदा ईएमएफ। हुण करंट जो है वो येलो लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि वाइट लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट करेगी कि होर केड़ा रंग रह गया अपना, ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट। करंट कुछ भी की लगता,
सो करंट है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ जी, तो करंट ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਰੂਗੀ वाइट, तो वाइट ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? तो मुस्कान, रिया, जिया, तो एंड अदिति, मैनू आईपैड का नाम नहीं पता की नाम हैगा, नाम दसे। सर करणवीर सर। अच्छा करणवीर, ठीक है फाइन, हुण मैनू याद रहूगा। तो ठीक है जी, लविका, मुस्कान, रिया, जिया, करणवीर, ठीक है जी। सो मनप्रीत, गुरैया, तो इंद्रपाल, ठीक है। तो आपां जिहड़ा हैगा आ अर्पित, गुड, ठीक है, हरमन, फाइन, ठीक है। तो आप ग्रीन नाल इस करके नहीं रिप्रेजेंट कर सकते क्योंकि फेस दोनों का सेम आ, ओमेगा टी एंड ओमेगा टी। बाकी रेड, येलो, वाइट, इन्हां ब्लैक, इन्हां सारियां दे विच फेज सेम आ, ओमेगा टी आ। एंपलीट्यूड करंट दा क्योंकि घट आ, इस करके अपने कोल जिहड़ी आ लाइन हैगी आ, वाइट लाइन जिहड़ी हैगी आ, वो करंट नूं रिप्रेजेंट करेगी। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੇਗੀ? ਇਹਨੂੰ EMF, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਬਸ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो आ हो गया E नॉट, ते ए हो गया इधर फेज, ते आ हो गया जी I नॉट। E नॉट, ठीक है जी। आ फेजर डायग्राम्स बना लिए जी, बस इन्नी हुंदी है, पर जरूरी हुंदी बनाउणी। डन जी। हाँ जी सर। Okay. So next लिखिए जी, AC circuit containing capacitor only। तो ਆਪਾਂ ना पहला resistor हो गया, हुण जिहड़ा आ एक कैपेसिटर हो गया, तो एक जिहड़ा आ वो इहदे विच की हो जाऊगा, इंडक्टर। ठीक है, आ डायग्राम बना लियो। तो पहला आपां कैपेसिटर दा बिहेवियर बैटरी दे नाल पढ़िया आ, हुण जिहड़ा आ वो आपां किहदे नाल पढ़ांगे? अल्टरनेटिंग करंट। तो लिखिए जी, कंसीडर a source of alternating EMF connected across the capacitor of capacitance C, capacitor of capacitance C, let E naught be the value of maximum EMF then instantaneous value of EMF is सो E की हो गया E नॉट साइन ओमेगा टी, रेजिस्टेंस भी सेम ही सीगा और कैपेसिटर भी सेम। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, इहदा की फॉर्मूला है?
Sir, C is equals to VR. E minus IR. VQ, sorry. C is equal to Q by V या V is equal to Q by C, ठीक है। तो V is equal to IR सिर्फ किहदे ਲਈ ਆ रेजिस्टेंस ਦੇ ਲਈ, कैपेसिटर ਲਈ ਜਿਹੜਾ वोल्टेज ड्रॉप है ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾर्मूला हो गया E is equal to Q by C, ठीक है जी। सो E ਦੀ वैल्यू पुट करती E नॉट sin ओमेगा t, तो Q किहदे इक्वल हो गया C E नॉट sin ओमेगा t। तो सानू की चाहिए करंट, करंट दे ਲਈ की करिए ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ करंट चाहिए। Sir, charge ਨੂੰ convert ਕਰ ਲਓ। ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਕਨਵਰਟ? Sir, I is equals to Q by T, तो फिर Q is equals to I into T हो जाए। ठीक है, सो Q by T, तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ Q by T करिए कि dQ by dt करिए कि दो ही ठीक आ? Sir, dQ by dt। dQ by dt क्योंकि नॉन यूनीफॉर्म वेरिएशन हैगी आ, ठीक है। अगर यूनीफॉर्म वेरिएशन होंगी तो फिर ਆਪਾਂ Q by T भी कर सकते ਸੀਗੇ, पर क्योंकि नॉन यूनीफॉर्म आ इस करके ਆਪਾਂ dQ by dt ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ठीक है। ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਸਾइन ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? cos और सो cos ओमेगा t आ कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड भी होगा? I omega। हाँ जी, अच्छा इन्हें अलग सॉल्व कर 7 plus 7 by 5 plus 9 डिवाइड है ना, तो बॉड मास हो गया ना, बॉड मास पहला है डिवीजन हो गया मल्टी डिवीजन, तो इधर ले ठीक है। पहला इन्हें सॉल्व कर लो, फिर आ जेड़ा है इन्हें अलग सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर इस तक करके लगे। हाँ जी, नोट कर ले जी। So I cos omega t into omega, ਹੁਣ अगर ਅਸੀਂ cos ਨੂੰ sin ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? Sir, cos square is equals to 1 minus sin square। स्क्वायर तो इलावा कोई और तरीका हैगा? आ ठीक है, इदा आ सकदा cos ओमेगा t 1 minus sin square ओमेगा t ਦਾ अंडर रूट आ सकदा, ये ठीक है। इस तो इलावा कोई और होगा? सर 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो cos ਨੂੰ ਆਪਾਂ sin 90 माइनस थीटा ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ठीक है। सो ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖਿਓ ओमेगा ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ 2 pi by t, तो c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ q by v। टाइम ਦੇ ਕੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ? second सेकंड। चार्ज दे? कूलम। वोल्टेज दे? v वोल्ट। कूलम पर सेकंड केड़ी फिजिकल क्वांटिटी बनी? सर, करंट। करंट करंट, तो करंट दे की यूनिट हो गए एम्पियर। एम्पियर। एम्पियर ओवर वोल्ट, वोल्ट ओवर एम्पियर केदे यूनिट होंदे? वोल्ट ओवर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दे की यूनिट आ ओम।
एम्पियर ओवर 1 वोल्ट upon ohm. 1 ओवर ओम, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कूलम एम्पियर 1 ओवर ओम। ठीक है, तो इनू ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ XC, ਆ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਆ ਗਿਆ 113 over 35 ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी, नोट कर लिया जी। Where XC is called reactance, that is resistance offered by capacitor। ठीक है, तो एक नवी टाइप दी रेजिस्टेंस आ गई। ठीक है जी, नोट कर लिया जी। Yes sir. ठीक है, एक ना हुण अपने कोल की आ कि हरेक करंट कैरिंग डिवाइस जिहड़ा है कोई भी हो गया, तो जिद्दां कैपेसिटर हो गया या इंडक्टर हो गया, तो ये सारियां ने कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करनी हुंदी है। तो जदों आपां सैकेंड चैप्टर च देखदे हां तां आपां इहदा ब्रॉडर व्यू देखदे हां कि अच्छा रेजिस्टेंस आ, किसी ने भी वायर ने जो रेजिस्टेंस ऑफर करनी है उहनूं असीं रेजिस्टेंस ते आवे। हुण आपां की कर रहे हैं, स्पैसीफिक कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस जिहड़ी ऑफर करनी है कैपेसिटर ने, ये सारे जिहड़े डिवाइस आपां पढ़े आ, इंडक्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस, ये सारे की आ करंट कंट्रोलिंग डिवाइस आ। हुण जिहड़ी कैपेसिटर ने रेजिस्टेंस ऑफर करनी आ, वो अपने कोल एक नवी टर्म आ गई, ओनू की कह दिंदे आ रिएक्टेंस। ठीक है जी, सो की हो गया E ओवर ओमेगा C, तो 1 ओवर वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस एक ही हो जाएगा करंट। सो I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा T, तो या आप इनू की लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा T प्लस पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा जो है वो किहदे इक्वल हो जाता है, कॉस थीटा दे। ठीक है, नोट करिए जी इत्थे तक। सर इथे माइनस पाई बाय 2 नहीं आऊगा? माइनस भी आ सकता हुंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपां क्योंकि फिजिक्स है ना, तो प्रैक्टिकली की हैगा आ कि इस कैपेसिटिव सर्किट दे विच करंट लीड करदा है, तो इस करके प्लस पाई बाय 2 कीता। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंटल एंड ऑल दैट। ठीक है, सो इस केस दे विच अगर असी EMF रिप्रेजेंट करनी है E, तो केड़ी लाइन दे नाल रिप्रेजेंट करांगे, रेड के वाइट? वाइट। वाइट, क्योंकि ये भी जड़ा आ वो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा T आ। इतना आउंदा नहीं आंसर, आंसर नहीं आ रहा। ठीक है जी, और जो करंट है ये किहदे नाल रिप्रेजेंट होएगा, रेड, वाइट के येलो? सर वाइट के ब्लैक? रेड। हाँ जी, रेड सर। रेड, क्योंकि Black. हैगा या कॉज। ठीक है जी, तो इसलिए कॉस 0 कितना हुंदा, 1
1 ठीक है। सो 0 इथों इत्थे तक की हो गया t जिहड़ी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इत्थे की हो गया t/2 ठीक है जी। और ये ना बहुत बनाना है ख्याल नाल, आ जिथे करंट 90 दे उपर मैक्सिमम होगा साइन और वोल्टेज मैक्सिमम होगी, और जो करंट है वो कितना होगा 0। तो एदी पीक ते एदा मिनिमा एक, तो इत्थे अपने कोल की हो गया 3t/4 ठीक है। तो ये अपने कोल की हो गया E और I, आ नोट करियो जी पूरा। ठीक है। हाँ जी नोट कर लिया जी। हाँ जी सर। So next लिखियो जी the phasor diagram for capacitive circuit is as shown। So वोल्टेज E नु कौन रिप्रेजेंट करेगा? ब्लैक के रेड? ब्लैक। ब्लैक, क्योंकि इत्थे भी साइन ओमेगा टी ही है, तो इसलिए इहदा फेज जिहड़ा आ वो यही हो गया ओमेगा टी। जो करंट है, तो करंट नु कौन रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, तो एक रेड बनी आ, तो एक आ हो गई येलो ठीक है। तो करंट ने वोल्टेज तो एम्पलीट्यूड रहना घट ही है ना हमेशा हो, तो एक हो गया इत्थे वाइट ठीक है जी। तो ये जो है ये v π/2 है एंगल ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ एंगल है ये भी π/2। तो करंट नु केड़ा फेजर रिप्रेजेंट करेगा, रेड वाइट के येलो? सर रेड। रेड ठीक है। तो रेड क्योंकि इत्थे प्लस π/2 आ, तो इन्हें इनक्रीज किद्दां होना आ, अगर एरो जिहड़ा हैगा आ वो रोटेट करदा पिया आ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अगर प्लस आ तां ये एंटी क्लॉकवाइज चलिया, अगर माइनस हुंदा तां क्लॉकवाइज जिहड़ा सीगा फिर उन्हें चलना। आ माइनस च चलदा पिया, आ जिहड़ा हैगा आ ये एंटी क्लॉकवाइज आ, तो ये इंक्रीज हो रहा। आ साडे कोले इत्थे 0 90 प्लस 180 आ साडे कोल इदां जिहड़ा हैगा आ वो चलदा पिया हैगा ठीक है। सो इसलिए जिहड़ी इहदी फेजर डायग्राम हैगी आ ठीक है जी, तो ये अपने कोल किहड़ी होगी, ये रेड लाइन जिहड़ी हैगी आ वो रिप्रेजेंट करेगा ठीक है। तो आ अपने कोल हो गया फेजर ठीक है। तो लिखियो जी द फेजर डायग्राम, और एरो जड़ा है ऑफ कोर्स आप इहदे तो छोटा बनाना, फॉर कैपेसिटिव सर्किट is as shown। So x axis होगी, y axis तो y dash, o a
सर एक क्वेश्चन पूछा हाँ जी सर ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆ 6ਵੀਂ ਚ। ਓਕੇ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਈਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਧੱਕਾ ਹੀ ਆ।